مریم کا بیان، کمیٹی کا اعلان۔ چائے کی پیالی میں طوفان، سندھ میں کتنے افسران کا فقدان؟ چیف جسٹس کا کیا فرمان؟ سپریم کورٹ کا بڑا حکم، اور پیٹرول بحران بلائے جان۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے وزارت اطلاعات نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے اعتراف پر تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری اشتہارات میں بے ضابطگیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق اپنی رپورٹ مرتب کرے گی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزارت اطلاعات نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے اعتراف پر تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ کمیٹی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری اشتہارات میں بے ضابطگیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق اپنی رپورٹ مرتب کرے گی۔ سما کو بہت موقع دیا ہے، 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز۔ مریم نواز کا برملا اعتراف، وزارت اطلاعات نے شروع کر دی تحقیقات۔ میڈیا کو جاری اشتہارات میں کیا کیا بے ضابطگیاں ہوئیں، کن من پسند صحافیوں اور گروپس کو نوازا گیا، معاملے کی تہ تک جانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ سما کو بہت موقع دیا ہے، 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی ہوں، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق نواز حکومت میں مریم نواز کی سرپرستی میں میڈیا سیل متحرک رہا۔ سیل کے ذریعے قومی خزانے سے وفاقی حکومت کے 9 ارب 62 کروڑ 54 لاکھ 3,902 روپے خرچ کیے گئے۔ میڈیا سیل سے پنجاب کی ایڈورٹائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی میڈیا سیل کے ذریعے سرکاری رقوم کے غیر قانونی استعمال کی تحقیقات کرے گی۔ معاملے پر رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو پیش کی جائے گی۔ نیب جاوید اقبال نے کہا ہے کہ کچھ لوگ سیاست میں خود کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھتے ہیں، ان کی صبح نیب سے شروع اور شام نیب پر ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان سے بلا کر منی ٹریل مانگی جائے گی۔ پاپڑ والا، گنڈیری والا اتنے امیر کیسے ہوں گے؟ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ مجھے جتنا برا بھلا کہہ دیں، الزام تراشی کریں، جتنی گالیاں دینی ہے دے دیں، کیس صرف اور صرف میرٹ پر ختم ہوگا۔ گزشتہ 4 سال میں 1270 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں داخل ہوئی۔ یہ جو نیب کے کیسز ہیں، ان کی ریفرنسز کا ڈیسائیڈ کرنا وہ احتساب عدالت کا کام ہے، وہ نیب کا کام نہیں ہے۔ اگر ان ریفرنسز کو ڈیسائیڈ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ یقین کریں کہ یہ سال اس میں کبھی نہ لگتے۔ کچھ لوگ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آیا، پاپڑ والا اور شابڑی والا اور گنڈیری والا یہ اتنے امیر کہاں سے ہو گئے کہ کروڑوں روپے کی اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی۔ وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا کہ جی یہ ریکوری کہاں جاتی ہے؟ بھائی ریکوری ہمیں کوئی کرنسی نوٹس کی شکل میں نہیں ملتی کہ ہم آپ کو بلا کے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ ہے۔ ان کی صبح نیب سے شروع ہوتی ہے، ان کی شام نیب پہ ختم ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ نیب کے کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں آج ان کو آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں۔ اگر میں 48 گھنٹے میں پوری کارروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کارروائی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سرکاری افسران پر وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک فارمولا ہے۔ گریڈ 20 میں وفاق کا کوٹا 60% ہے، اس حساب سے سندھ میں گریڈ 20 کے افسران کی تعداد 67 ہونی چاہیے۔ اس وقت صوبے میں گریڈ 20 کے 47 افسران کا شارٹ فال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اٹارنی جنرل کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اب تک صورتحال جوں کی توں ہے۔
बदकिस्मती के साथ सूबा सिंध के अंदर वफाक उन वफाकी अफसरान को उस नंबर में पोस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी गवर्नेंस मुतासर होती है। ग्रेड 20 में जो कोटा है वफाक का वो 60% है, यानी कि अगर 100 असामियां हों ग्रेड 20 की सूबा सिंध में तो उनमें से 60 असामियां वफाक यानी कि ऑल पाकिस्तान सर्विस के DMG, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस OMG जो सर्विस के लोग होते हैं उनकी होंगी, और 40% जो है वो सूबे के होंगे। उस रेशो के हिसाब से सूबा सिंध में ग्रेड 20 के वफाकी अफसरान का नंबर होना चाहिए, तादाद होनी चाहिए 67, और इस वक्त कुल 20 अफसरान हैं जो वफाक में तैनात किए हुए हैं सूबा सिंध के अंदर। 47 ऑफिसर्स का शॉर्टफॉल है। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ वक्तों पर वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज किया और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट हो, वजीर आजम हो, मुताल्लिका हुक्काम हो, उनको बताया है। नाज़रीन, कराची चिड़ियाघर में नायाब शेर कैसे मरा, वजह भूख बनी या बीमारी? सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, शेर का ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने चिड़ियाघर को पोर्ट एंड शिपिंग के मातहत करने का मशवरा दे दिया। नाकामयाब, नायाब शेर हलाक, इंतजामिया नाअहल, माफियाज ताकतवर। कराची चिड़ियाघर में नायाब सफेद बबर शेर तड़प तड़प कर मर गया। अफ्रीका से 2012 में 1 करोड़ से शेर खरीदा गया, लेकिन केयर न की गई। मुबैना तौर पर 3 दिन से खाने को नहीं मिला। शेर के बीमार होने की इतलात भी हैं। लागर शेर की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं नायाब नस्ल के शेर का ख्याल नहीं किया गया। चिड़ियाघर के जानवर भूख से मर रहे हों तो ये तशवीशनाक बात है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के यहाँ पहुँचने के बाद हमें कोई ऐसी खबर यहाँ से अच्छी नहीं आई KMC से या शहर कराची के लिए कि हम समझें कि बड़ी बेहतरी हो गई है। बातें बड़ी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस चिड़ियाघर कोई तबाही के दहाने पर जा रहा है। रिवैम्पिंग हो रही है, हमें पता है जैसे सिंध के प्रोजेक्ट से होता है, साल हर साल रिवैम्पिंग होती रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इंसानी जान हो या जानवर की दुख और तकलीफ होती है। 10 दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी, इंक्वायरी हो रही है। कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है जिसकी वजह से ये नुकसान कराची शहर का हुआ है, कराची के चिड़ियाघर का हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। रेस्ट अश्योर्ड, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत को पेशकश कर दी। कहा अगर सिंध हुकूमत इसे नहीं चला सकती तो वजारत बहरी अमूर अपनी पोर्ट के जरिए इसे चलाने को तैयार है। नस्ला टावर गिराने के लिए 50 रोज का वक्त चाहिए। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती फैसले पर मिनवन अमल शुरू कर दिया गया। तिजोरी हाइट्स का बिल्डर इमारत खुद गिरा रहा है। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का काम जारी। अदालती फैसले पर मिनवन अमल शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट 1 सफ़े पर मुश्तमिल है जिसमें तस्वीर भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नस्ला टावर इमारत गिराने के लिए कम से कम 50 रोज का वक्त चाहिए। तिजोरी हाइट्स का बिल्डर इमारत खुद गिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमिश्नर कराची रिपोर्ट्स का जायजा लिए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम रिफाई प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात खत्म करने और असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दे दिया। हबीब सोसाइटी का केस खुद देखने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए नैब की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता। रियासत की क्या मजबूरियां हैं। रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता। रियासत की क्या मजबूरियां हैं। रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्क कब्जा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तमाम रफाई प्लाट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराने का हुक्म। प्लाट्स को असल शक्ल में बहाल करने की हिदायत कर दी। सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे पास अलॉटमेंट मनसूखी का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की, आप बाख्तियार हैं, प्लॉट्स कैंसिल कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौन है अतहर आलम जिसने रफाई प्लाट्स फरोख्त कर दिए। आजाद घूम रहे हैं, इनको जेल में होना चाहिए। इस्तफसार किया, 32 प्लाटों का मसला 10 साल से चल रहा है। हुकूमत ऐसे चलती है जिस तरह चलाई जा रही है। रजिस्ट्रार ने बताया नैब तहकीकात की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नैब कोई आसमान से तो नहीं उतरा, क्या नैब के सारे केसेस में ऐसा ही होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, 14 गवाहों में 14 साल और लगेंगे। ये टोटली कोलैप्स है, अफसोसनाक सूरत हाल। कहाँ है रियासत। पूरे कराची पर कब्जा है, नालों पर भी कब्जे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। अदालत ने केस से मुतालिक नैब तफ्तीशी अफसर के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। चेयरमैन नैब को अल हबीब सोसाइटी का केस खुद देखने की
की हिदायत कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर और साफ को दिए तमाम केसेस का जायजा लेने का भी कह दिया। रिमार्क्स दिए अहम केसेस ऐसे अफसरान के हवाले न किए जाएं। अदालत ने जुम्मे को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। खबरों में आगे देखिए, नौशीन काज़मी ने क्यों ली जान। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने से मुतालिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 1 माह में कब्जा खत्म करा के जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सीनियर मेंबर की सरजनिश की, रिमार्क्स दिए हमारे साथ मत खेलो, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, मुंशी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, क्या हो तुम, सीनियर मेंबर बनो, आधे कराची पर कब्जा है, अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। अपने साथ मत खेलो, बेवकूफ बनाने की कोशिशें करते हो, मुंशी हो, बाबू हो, क्लर्क हो, क्या हो तुम, सीनियर मेंबर बनो। आधे से जायद सिंध की सरकारी जमीनें कब्जे में हैं, वो नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश कर दी। सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुताल्लिक केस की कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जमीनों से कब्जा खत्म कराने और 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने मेंबर पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए, कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, जाकर कब्जा खत्म करवाओ। चीफ जस्टिस ने एजी से मुकालमा किया, ये अफसरान कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने मुकालमा किया, आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आधे कराची पर कब्जा है, पूरा हैदराबाद इंक्रोच्ड है, मलिर चले जाएं, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड सब देख लें। ये जो 15 और 20 मंजिला इमारतें बन गईं, क्या कानूनी हैं? सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी हैं, सब जाली कागजात पर बनाई। कोई मजबूरी नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे? अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा और जेल जाएंगे। हमें 5 मिनट लगेंगे ऑर्डर करने में। आपको शहरियों की खिदमत के लिए बिठाया है, मास्टर्स के लिए नहीं। यह ओहदा आपको अल्लाह ने दिया है, किसी और ने नहीं। अगर आपने खरीदा है तो अलग बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।